Hello, good morning to you all. So we are going to start the today's topic, that is the properties of concrete at fresh and the hardened stage. About this, we have sent lecture note yesterday just to go through that and prepare the topic. And if you could not understand, you ask the questions today. So I am just giving few introduction and then you start asking the question. Actually, properties of concrete में there are two functional points. Number one is the fresh stage and another is the hardened stage. We can understand this, the initial setting time and the final setting time. At the same time, we can say semi-solid stage are the plastic stage and solid state. So these are the two functional points. Fresh means semi-solid stage and hardened means solid states. तो फ्रेश स्टेज की क्या प्रॉपर्टीज हैं और उन किन किन फैक्टर से वो गवर्न होती हैं और हार्डेंड स्टेज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसमें क्या होना चाहिए और किन किन पॉइंट से वो गवर्न होती हैं, दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे. So these are purely functional points in the sense that former defines the limit of hardening and the latter defines the beginning of development of mechanical strength. Means when our concrete has been hardened, then some mechanical property is associated with that. And during the plastic limit, it doesn't have any strength. So this is the meaning of that. Now we are talking about the first stage, that is the fresh stage of the concrete. The first stage is transient, means the thing is going on. प्लास्टिक स्टेज है, इसमें चीजें सॉलिडिफिकेशन की तरफ बढ़ रही हैं. द फर्स्ट स्टेज इज ट्रांजिएंट. its condition seriously affects the behavioral properties of the final product. Final product means जो कंक्रीट हम बनाने जा रहे हैं, दैट इज आवर फाइनल प्रोडक्ट. इसमें जो फ्रेश स्टेज में जो हमारे प्रोसेस होते हैं, दैट इज ए कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग. तो अगर हमारा पुअर कॉम्पैक्शन है या इम्प्रॉपर क्योरिंग है, तो दिस विल लीड टू दी पोरस कंक्रीट विद लो स्ट्रेंथ एंड हाई परमेबिलिटी. ये जो कंक्रीट हमारी बनेगी, दैट इज ए फाइनल प्रोडक्ट. इसमें छिद्र होंगे, इसमें पोरोसिटी होंगी, और वो पोरोसिटी हमारे लिए कितनी घातक है कि इसकी स्ट्रेंथ ही कम हो जाएगी और इसमें पानी पास होने लगेगा. हाई परमेबिलिटी मीन्स इट कांट स्टॉप दी वाटर. अब नीचे वाला ऊपर आना. नाउ now other than these two things, there are so many other properties with the fresh stage of the concrete. So I have enlisted it. It is like this: workability, consistency, temperature, bleeding, segregation, time of set, and the plastic shrinkage. So these are the few other properties which any fresh concrete should have. Now we all know about the workability. वर्केबिलिटी को अगर आप समझना चाहें तो इस समझ सकते हैं कार्य करने की सुगमता. जो कंक्रीट बना उसमें तीन चीजें मिली हुई हैं, दैट इज द सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड द वाटर. इनको ठीक से अगर हम मिला सकें, एक होमोजीनियस इनका मास बना सकें, तभी ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कन्नी बोलते हैं,
उससे इसको हम फैला सकते हैं। वर्केबिलिटी का मतलब ये है कि सुगमता से ये कंक्रीट को हम जिस शेप में देना चाहें वो शेप दे सकें। दिस इज द वर्केबिलिटी, and this workability is associated with so many factors which I will tell you later on. Now the consistency, this is the another term. Consistency means सघनता या गाढ़ापन। जो हमारा पेस्ट बना है, जो हमारा सीमेंट, सैंड और पानी और कंक्रीट को मिला करके एक मास बना हुआ है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा हर दफे जब भी हम इसको बनाएं एक समान रहनी चाहिए। दिस इज नोन एज ए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को एक वर्ड में अगर कहना चाहें तो इस तरह भी कह सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी टू फ्लो। मीन्स ये ऐसा होना चाहिए ताकि हम इसको एक शेप दे सकें, ये बहने की प्रवृत्ति में होना चाहिए। नाउ द टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे हमारा फ्रेश कंक्रीट है, जैसे जैसे समय बीतता है और सूरज की गर्मी बढ़ती है, वैसे ही वैसे हमारा जो कंक्रीट का मास है, कंक्रीट जो हमारी है, उसमें एवापोरेशन शुरू हो जाता है। जैसे एवापोरेशन शुरू होता है वैसे ही हमारी ये कंक्रीट स्टिफ होने लगती है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द stiffening and the hardening. Stiffening is another thing, hardening is another thing. Hardening होती है कंक्रीट की तब जब उसमें केमिकल एक्शन होते हैं, और स्टिफनिंग तब होती है जब उसमें एवापोरेशन होता है, पानी हमारा निकल जाता है एवापोरेशन की प्रक्रिया से। उस वक्त जो हमारी स्टिफ हो जाती है कंक्रीट, उसको नहीं होने देना है। इसलिए अगर हमको टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करते हैं, देन वी हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर टू मेक अप ऑल दीज लॉसेज। ब्लीडिंग। Bleeding, if we add more water into the concrete, that excess water will come at the upper surface of the concrete. वो because the density of the cement is very less, and with water it can come at the above of the concrete. Segregation. When there is a less water in concrete, the mix cannot be properly become homogeneous, तो इसके जो पार्ट्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। जब हम इनको फैलाने की कोशिश करेंगे तो बालू अलग, गिट्टी अलग, सीमेंट अलग हो जाएगा। दैट इज नोन एज सेग्रीगेशन। एंड टाइम ऑफ सेट। ऑफ कोर्स द टाइम ऑफ सेट मीन्स whatsoever water is there, that water is going to reduce for two reasons. One, the evaporation, and another is the जो ड्राई कंक्रीट है, ड्राई एग्रीगेट्स हैं, दे आर एब्जॉर्बिंग दैट। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द टाइम ऑफ सेट। मीन्स वी कांट गो फॉर लार्जर पीरियड during mixing of the mix. And the last is the plastic shrinkage. The plastic shrinkage is very important thing. The plastic shrinkage is caused by the loss of water by evaporation from the surface of concrete or by section of the dry concrete below. जब फॉर्म वर्क होता है, जो हमने लकड़ी का एक फॉर्म वर्क बना रखा है जिसमें हम इस कंक्रीट को डालेंगे बीम बनाने के लिए या कॉलम बनाने के लिए, और अभी वो फ्रेश स्टेज में है हमारी कंक्रीट, तो उस वक्त जो कंक्रीट प्लास्टिक स्टेज में होती है, उस वक्त अगर इवापोरेशन हो उस पानी का, या जो कंक्रीट है वो मॉइस्ट नहीं हो, वो हमारे इस पानी को मिक्स के पानी को अपने अंदर खींचे, एब्जॉर्ब करे, तो उस वक्त जो श्रिंकेज होता है दैट इज नोन एज ए प्लास्टिक श्रिंकेज। और यही वो कारण है जब हमारी कोई कंक्रीट जो होती है, ये हम देखते हैं कि 7 या 8 दिन बाद
ऊपर तमाम क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे हेयर। तो जब ये ऊपर के सरफेस में क्रैक्स आ जाते हैं और ये हेयर क्रैक्स होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ evaporation of that water. So we can say the harm of the plastic shrinkage क्या होता है? The contraction in volume induces tensile stress in the surface layer. As the concrete is very weak in a plastic stage, so cracks will take place at the surface. So this is the plastic shrinkage. इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह इसका उपयोग होता है। ये प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ रहे हैं? फ्रेश स्टेज की और हार्डेंड स्टेज की। सपोज हम एक कॉलम को कास्ट कर रहे हैं, उस कॉलम में आज की तारीख में हमने 3 फीट तक कॉलम की कास्टिंग कर दी। अब हमको दूसरे दिन कॉलम की कास्टिंग करनी है, तो जो हमारी पहली वाली कॉलम है जिसकी कास्टिंग हम कल कर चुके हैं, वो हार्डेंड स्टेज पे पहुंच चुकी है। और आज जो हम कॉलम फिर से उसके ऊपर ढलाई करेंगे, कास्ट करेंगे, वो फ्रेश स्टेज की है। तो देयर आर large difference between the properties of the fresh stage of the concrete and the hardened stage of the concrete. Now we will just vibrate the old one just to give the bond to the fresh concrete. फिर हम देखते हैं कि इसका इस तरह से इस कॉलम का जो स्ट्रेंथ है वो कितनी घट जाती है। For these reasons, we are bound to study all those things. So thus we can say the fresh concrete की जो properties हैं वो हो गई। Now we will come to the another property. This is the properties for the hardened concrete. So it defines the beginning of development of mechanical strength. जो इनिशियल स्टेज पे जब हमारी फ्रेश स्टेज की कंक्रीटिंग खत्म हो गई, अब हमारी कंक्रीट जो है वो सॉलिड स्टेज में पहुंच रही है, उस वक्त हम क्या कहते हैं कि अब इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू हो गया है। सो इट डिफाइंस द बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाय इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज as well as its ability to resist deterioration. The mechanical properties can broadly be divided into the short-term properties and long-term properties. अब ये जो hardened concrete की properties है, जिसे अब हम mechanical properties कह रहे हैं, ये दो भागों में divide करके अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। एक होता है short term, जो कम समय के लिए इसकी properties होती हैं। एक होती है लॉन्ग टर्म, जो सालों साल कंक्रीट के कई साल बीतने के बाद भी जो प्रॉपर्टी हमको चाहिए होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने इसको दो भागों में कैटेगराइज किया है। वन इज द शॉर्ट टर्म, मीन्स इंस्टेंटेनियसली, जैसे ही हमारी बीम या कॉलम या स्लैब ढलती है, हम उसका उपयोग शुरू कर देते हैं या उसके ऊपर अलग कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। तो वो स्लैब हो या बीम हो या कॉलम हो, वो लोड होना शुरू हो जाती है। उस वक्त उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको देखते हैं। और जब पूरा काम हो चुकता है, उसके बाद जब हम उस पूरी बिल्डिंग का उपयोग शुरू कर देते हैं, उस वक्त उस पर क्या क्या फर्क पड़ता है, वो लॉन्ग टर्म के अंतर्गत आता है। तो जो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज है, दैट इज द स्ट्रेंथ अंडर डिफरेंट स्टेट्स। जो उसकी शक्ति है, जो उसकी सामर्थ्य है कंक्रीट की, डिफरेंट स्टेट्स मींस शुरुआती दौर में जबकि वो 28 दिन की है, जबकि वो 4 महीने की है, जबकि वो 1 साल की है। तो इस शुरुआती दौर में जो उसकी प्रॉपर्टीज है उसको कह रहे हैं स्ट्रेंथ एट डिफरेंट स्टेट्स। एंड द elastic modulus of the concrete. प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एक इलास्टिक मॉडुलस होता है जिसे ईसी कहते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन इलास्टिक मॉडुलस। अनदर इज द इफेक्टिव इलास्टिक मॉडुलस।
तो जो इफेक्टिव है वो तो लॉन्गर पीरियड वाले के लिए है, ये शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाई 5000 under root FCK, where FCK is the characteristic strength. And the third property is the bond characteristics. Bond characteristic उसको कहते हैं, it is resistance to separation of mortar and concrete from the reinforcing steel. हम वो देखते हैं कि हमारी जो कंक्रीट है और जो उसके अंदर स्टील पड़ी हुई है, ये कंक्रीट ने स्टील के साथ एक प्रॉपर बॉन्ड बना लिया है कि नहीं बनाया है। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर बॉन्ड ना बना हो, स्टील अलग हो और कंक्रीट अलग हो। तो these are the few properties which we have to see by different practical lab procedures. And the long term means which can sustain for years together. उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज आती है, दैट इज नोन एज ए क्रीप, श्रिंकेज, fatigue behavior and durability. So we must know what is the creep, what is the shrinkage, what is the meaning of the fatigue, and what is the meaning of this durability. So we can say about this creep. Creep is the small and quietly flowing of that small gradual change. Creep is known as a small gradual change. कोई बीम है, उस वो लोड है, लोड में बीम के अंदर अगर डिफॉर्मेशन होना शुरू हो रहा है, वो बेंड होना शुरू हो रहा है, तो बहुत माइन्यूट सा बैंड होता है, उसमें बेंडिंग होती है, उसको हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं, उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन एज ए क्रीप. Shrinkage, shrink means with respect to the time, जो उसका वॉल्यूम सिकुड़ता है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज जो होते हैं डायमेंशन में, दैट इज नोन एज ए श्रिंकेज. फैटीग, फैटीग मीन्स ओवर टायर्ड. जैसे कोई इलास्टिसिटी है, उसको, उस इलास्टिसिटी को नंबर ऑफ टाइम्स अगर खींचा जाए किसी रबर को, और एक समय ऐसा आता है कि रबड़ में फिर वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, रबड़ को खींचिए तो वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती है. इसी तरह कंक्रीट में भी होता है. कंक्रीट में अगर नंबर ऑफ टाइम्स उसमें रिवर्स स्ट्रेसेस दिए गए, प्लस और माइनस के स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब का कंक्रीट का टिकाऊपन खत्म होता है. तो ड्यूरेबिलिटी माने होता है चिर स्थायित्व, ज़्यादा समय तक वो, काफ़ी समय तक वो टिका रहे. अगर वो उसका टिकाऊपन ज़्यादा समय तक नहीं होगा तो उसे ड्यूरेबल नहीं कहा जाएगा. एंड दिस ड्यूरेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग थिंग्स. नंबर इज द पोरोसिटी, impermeability, abrasion, freeze and thaw resistance. पोरोसिटी वी नो दैट, अगर हमारी कंक्रीट है उसमें पोरोसिटी है, छिद्र हैं उसमें, बहुत सॉलिड नहीं है, उसे पोरोसिटी कहेंगे. इम्परमेबिलिटी, अगर वो पानी को रिटेन कर लेता है, पानी उसके अंदर से पास नहीं हो पा रहा है, दैट इज इम्परमेबल. अगर उसके अंदर से पानी निकल करके सीप हो जाता है तो वो परमेबल है. इट इज द कंक्रीट शुड बी इम्परमेबल. एवरेजेंस मीन खरोंच लगना. अगर हमारी कंक्रीट है, उसमें अगर हम ये मान के चलते हैं कि उसका जो सरफेस है उसमें किसी हार्ड चीज़ से अगर हमने उसको रब कर दिया तो उसके ऊपर कोई खरोंच नहीं आनी चाहिए, तो वो एब्रेजन है. खरोंच वगैरह ना आए, वो सरफेस उसका ना खराब हो. और फ्रीज और था रेजिस्टेंस उसको कहते हैं कि मटेरियल के अंदर जो एब्जॉर्ब करने की चीज शक्ति है, उसने अगर कोई चीज एब्जॉर्ब कर ली, सपोज वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, वो वाटर कोल्ड स्टेज में पहुंचने पर सॉलिडिफाई हो गया. तो जब पानी सॉलिड में
बर्फ बनता है तो बर्फ का वॉल्यूम कई गुना बढ़ जाता है। बर्फ का वॉल्यूम 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, और ये जो 9 गुना ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप करता है उस स्ट्रक्चर के अंदर। तो जिस पोर्स में, जिस वाइड्स में, जिस कंक्रीट के अंदर पानी चला गया, जब वो टेम्परेचर के चेंज होने में बर्फ में परिवर्तित हो गया और बर्फ का वॉल्यूम बहुत हो गया, तो हर वाइड्स, हर ऐसी जगह जहां वो बर्फ बन रहा है, वो काफ़ी स्ट्रेस डेवलप करता है और उसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर टूट सकता है। सो दैट इज ए फ्रीज एंड थाइंग रेजिस्टेंस। ये सब प्रॉपर्टीज एक मटेरियल के अंदर होनी चाहिए, इन सब का टेस्ट करते हैं और ये लॉन्ग टर्म के टेस्ट के अंतर्गत आता है। सो फ्रीज एंड था रेजिस्टेंस, इसके लिए मैंने आपको दिया हुआ है मटेरियल टू विदस्टैंड द हाईली डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज ऑफ साइक्लिक फ्रीजिंग एंड थाइंग। ये गर्मी और ठंडक से जो कारण से कोई चीज़ जमती है या कोई चीज़ पिघलती है, तो उससे जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं या स्ट्रेसेस रिलीज होते हैं, उसका जो फर्क है वो किसी भी स्ट्रक्चर पे नहीं पड़ना चाहिए। सो दीज आर दी अबाउट समथिंग related to the properties of the fresh concrete and the hardened concrete. So you please go through my lecture, my notes, and there are several books also. Uh, you go through all that, and you find any difficulty, please uh, send me your questions, your problem. I will try to rectify it in coming sessions. Thank you very much.